Assalamu alaikum. Welcome back in today's lecture. So, in this lecture, we are going to further study about the uh, next topic of the calculus and analytical geometry. So, in this lecture, we are further discussing about the Rolle's theorem, and we are going to further analyze the different aspects of the engineering in terms of different paths. So, moving towards our today's topic. So, in today's topic, we are going to further study about the Rolle's theorem. So, let any function f be a continuous on a closed interval that is known as a and b, and differentiable on the open interval, suppose same interval a b. Then we know that the function at the point a should be equal to 0, and function at the point b is also equal to 0. Then there exists another at least one point in that interval that is known as c, where f differentiation of c is equal to 0. Suppose, as we are further looking towards this graph, so this is the a point and this is the b point. Now there exists, and these both points are approaching towards the 0, as it tends to f of b equal to 0 and f of a equal to 0. So there might be some point which that is known, there might be some at least one point which is known as c. Then the differentiation of c is equal to 0, because that is similarly like the path follows similarly like the stationary point or the critical point, as we have studied in our previous lectures. So in other words, we can see that the first differentiation yields the slope of the tangent line is 0. If the tangent of the slope line is 0, then we know that the line is horizontal line. So now we are going to repeat this in Urdu. रोल्स थ्योरम के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम. ठीक है, हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, जो कि किसी क्लोज इंटरवल ए और बी पे कंटिन्यूअस है. ठीक है, अच्छा, और ओपन इंटरवल पे ये दोनों जो है, ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है. ठीक है, अच्छा, इस पॉइंट फंक्शन की इस पॉइंट भी जो है, इसके बराबर भी जो है फंक्शन 0 आ रहा है हमारे पास, और इस पॉइंट पे भी फंक्शन बी की पॉइंट पे भी हमारे पास 0 आ रहा है. ठीक है, तो ये अंडरस्टूड बात है कि जो एक उसके अंदर एक ऐसी पॉइंट होगी, कम से कम एक पॉइंट ऐसी होगी जहां पे जो है फंक्शन की डिफरेंशिएशन 0 आती होगी. सपोज कर ले ये हमारे पास एक ग्राफ शो हो रहा है हम आपके पास. ठीक है, एक पॉइंट ए है, ये दूसरी पॉइंट है, इनकी अगर पॉइंट की विद रेस्पेक्ट टू फंक्शन अगर फाइंड करना चाहे, दैट इज इक्वल टू 0. एफ ऑफ बी भी 0 होगा और एफ ऑफ ए भी 0 होगा. ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो मिडिल पॉइंट है एफ डिफरेंशिएबल ऑफ सी, तो बीच वाली पॉइंट जो हो गई, तो एटलीस्ट वन पॉइंट वहां पे होगी जरूर जहां पे डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 आएगी. सेम कॉन्सेप्ट है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दैट वाज इन स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है, अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन 0 तब होती है अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन 0 आ रही है हमारे पास, तो वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी. सिमिलरली लाइक दिस, ये ऊपर वाली पॉइंट जो लाइन देख रहे हैं, ये आपके पास सेम लाइन शो हो रही है. ठीक है, सो इसको मजीद एनालाइज करते हैं, इसकी वर्किंग किस तरह होती है, तो उसको मजीद हम जानते हैं. ठीक है, सो ड्यूरिंग वर्किंग विथ द Rolle's theorem, we have to keep 3 points in our mind. So number 1 point is that function f of x should be continuous and it is differentiable. It should be continuous on the closed interval of ab, and that is continuous and that is differentiable on the open interval of ab. Once again, I'm going to repeat this point. We have to make sure that the function is continuous on the closed interval of ab, and that is differentiable on the open interval of the ab. And the second point, that we have to show that the point a at the function should be always equal to 0, and the point b at the function should be always equal to 0. So or in other words, we can see that the f of a equal to 0 and f of b equal to 0. So we have to substitute the endpoints of the interval that must be equal to 0, and we have to check these points.
and we have to show that there exists at least one point that was x equal to c in the interval, so that the differentiation of c must be equal to 0. So further we are going to analyze these statements through the example. Once again I am going to repeat this in Urdu. देखिए जी, जब हम रोल्स थ्योरम पे काम करते हैं तो बेसिकली रोल्स थ्योरम पे काम करने से पहले हमें तीन चीजें जो है दिमाग में रखनी होगी, ठीक है, वो याद रखनी होगी। वो कौन सी चीजें हैं? एक ये है कि जो फंक्शन है आपका ये क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए उसके ओपन इंटरवल पे। कोई भी क्लोज इंटरवल है हमारे पास उस पे फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, और उसका जो ओपन इंटरवल होगा उस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन हमारे पास गिवन है, इंटरवल भी गिवन है, ठीक है। फंक्शन की फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट करके उसको देखना है इक्वल टू 0 फॉर्म में चेक करना है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास अगर फंक्शन की दूसरी एंड पॉइंट गिवन है दैट इज नोन एज बी, तो हमें वो फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके उसकी इक्वल टू 0 फॉर्मेट में चेक करना है, ठीक है। तीसरी जो चीज हमें चेक करनी होगी वो ये होगी कि जो फंक्शन है ए बी हमारे पास, और जिस इंटरवल पे यानी ओपन इंटरवल ए बी पे जो है डिफाइन है, ठीक है, उसमें एक पॉइंट होगी x इक्वल टू सी, यानी एक सी पॉइंट होगी जहां पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, तो उसका जो डिफरेंशिएशन आ रहा है, ठीक है, दैट इज नोन एज 0। इसको मैं इस तरह से भी अगेन मैं फंक्शन की डिफरेंशिएशन ऑफ दैट पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू 0 इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो ये हम मजीद इसको किस तरह करते हैं, मजीद इसको सॉरी यहाँ पे जो है c है, यानी c की डिफरेंशिएशन करेंगे आप, दैट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू टुवर्ड्स 0 पॉइंट जो है आपको शो होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम मजीद एनालाइज करते हैं और एक जो है प्रॉब्लम करके उससे मजीद वेरीफाई करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके हवाले से एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। एक फंक्शन है 2x इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं, एक 1 पॉइंट पे दूसरी पॉइंट पे। फंक्शन है हमारे पास x² - 5x + 4। फंक्शन है हमारे पास f(x) = x² - 5x + 4, ठीक है। हमने इसका जो है सबसे पहले इसके जो है एंड पॉइंट्स फाइंड करने हैं, x इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। तो वो किस तरह हम करेंगे? बेसिकली हमने इसको मिडिल टर्म ब्रेक करके इसको देखते हैं, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास कुछ मिडिल टर्म ब्रेक किया, तो हमारे पास इस सिलसिले में जो है 2 पॉइंट्स आ गई हमारे पास, यानी x = 1 और x = 4। ये इस फंक्शन के 2 x इंटरसेप्ट्स हैं, ठीक है। तो इसको मज़ीद हम जो है कुछ एनालिसिस के थ्रू हम मज़ीद इसको कर लेते हैं। सो x इंटरसेप्ट निकालने के बाद x हमारे पास इंटरसेप्ट जो आ गए वो x = 1 और x = 4 आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए फंक्शन जो है हमारे पास दैट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन x² - 5x + 4। सो ये हम जानते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल होता है वो कंटिन्यूअस होता है हर पॉइंट पे और डिफरेंशिएबल भी होता है हर पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी वेरीफाई कर रही है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप है, अच्छा इंटरसेप्ट्स आ गए हमारे पास, एक 1 था दूसरा 4 था, ठीक है। इस 1 और 4 को इस फंक्शन में इंटर करके देखेंगे तो ये 0 बनते हैं। देखते हैं 1 - 5 + 4, 5 + 5 5
प्लस का 5 माइनस का 5 0। x इक्वल टू 4 को अगर देखते हैं तो 16 माइनस 20 प्लस 4 माइनस 20 प्लस 20 0। तो ये दो कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी f अगर f की वैल्यू 1 अगर इंसर्ट करें तब भी हमारे पास वैल्यू 0 आ रही है, और f की वैल्यू अगर 4 इंसर्ट करें तब भी हमारे पास f की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, सो अच्छा, फिर हमारे पास तीसरी स्टेटमेंट है कि एक जो सेंटर पॉइंट है एटलीस्ट 1 पॉइंट, इस फंक्शन में एक ना एक पॉइंट होनी चाहिए जहाँ पे जो है c जो है वो भी 0 बनता है, यानी क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट होगी जहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। इसको c पॉइंट के अगर करना चाहें तो इसको ये बनेगा सिंपली c स्क्वायर माइनस 5c प्लस 4। अगर x की जगह c पुट कर लें तो c स्क्वायर माइनस 5c प्लस 4 बनेगा। ठीक है, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करें तो ये हमारे पास बनेगी 2c माइनस 5, क्योंकि c स्क्वायर c के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन होगी 2c। ठीक है, सो इन द गिवन स्टेटमेंट, so in the given problem, find the two x-intercepts of the function f of x equal to x square minus 5x plus 4 and confirm that the f dash of x equal to 0 at some point c between these intercepts. So here function is given f of x equal to x square minus 5x plus 4. So what we have done, we have first what it is asking about the two x-intercepts. It means the two endpoints of the interval. Endpoints of the interval. So how to obtain these endpoints? Simply we have break the middle term of the given expression, so that becomes x square minus 4x minus x plus 4. So then we have taken x common from the first two terms, that it becomes x minus 4, and then we have taken common minus 1 terms from the remaining 2, so it becomes x minus 1 and x minus 4. So here x intercepts are x equal to 1 and x equal to 4. So simply, as it seems that we have given the first we have find the two x intercepts of the interval. So one is 1 which are x equal to 1 and 4. So in the given statement x square minus 5x plus 4, it seems that this is a polynomial. This is a simple polynomial. So we know that every polynomial is continuous on every point of the interval and it is differentiable on every point. So as the function is given as a polynomial form, so it is continuous and differentiable. So as we have obtained x-intercepts, the endpoints 1 and 4 of the interval, so we have simply substituting this point to the given expression x square minus 5x plus 4, so it becomes 0. How? Because 1 minus 5 plus 4, 5 plus 5 and minus 5 becomes 0, and if we are substituting 4 in the place of x, so it becomes 16 minus 20 plus 4. So 16 plus 4 becomes 20 and minus 20 becomes 0. So f of 1 equal to 0 and f of 5 equal to 0. And the third, for the third point, so we have taken supposition, suppose c belongs to the given interval 1 and 4. So such that the differentiation of the function with respect to c should be always equal to 0. So we have replaced the x with the c, x equal to c. So the expressions become c square minus 5x plus 5x plus 4. The differentiation of the function with respect to c becomes 2c minus 5. So c becomes 5 upon 2. So this is the given point. At least this point here, the function is critical, or there exists a horizontal line above the function. Once again, I am going to repeat this in Urdu. देखें, इसमें हमारे पास एक फंक्शन गिवन था x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4.
इसमें हमने सबसे पहले क्या किया हुआ है, इसमें सबसे पहले हमने दो एंड पॉइंट्स जो है फाइंड किए हैं। वो किस तरह फाइंड किए हैं, जो गिवन एक्सप्रेशन है इसकी हमने मिडिल टर्म ब्रेक किए, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 1 और 4 आई, और इसको 1 और 4 जो आ गई, ठीक है। तो इसको हमने फंक्शन के अंदर अगर इंसर्ट करना चाहे, एफ ऑफ 1 की अगर वैल्यू देखना चाहे तो वो भी 0 आ जाएगी, और एफ ऑफ 4 जो है वो भी अगर इंसर्ट करना चाहे तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सो जो हमारे पास दूसरी जो पॉइंट थी जिसका रोल्स थ्योरम में हमें ख्याल रखना होता है, वो ये पॉइंट है कि हमें देखना है कि क्या फंक्शन कंटिन्यूस और जो है डिफरेंशिएबल है। देखें, फंक्शन तो हमारे पास कंटिन्यूस है, ठीक है, और डिफरेंशिएबल भी है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की खासियत है कि वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होता है किसी भी इंटरवल पे, और दैट इज डिफरेंशिएबल ऑन ईच पॉइंट ऑफ द गिवन इंटरवल। सो अच्छा, तीसरी जो पॉइंट है हमारे पास, सी जो पॉइंट है, जो इंटरवल के अंदर एक सी पॉइंट होगी जहां पे फंक्शन जो है दैट इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तीसरी कंडीशन थी। तो इसको हमने किस तरह एनालाइज किया है, जो हमें फंक्शन मिला था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, एक्स की जगह हम सी पुट कर रहे हैं, तो फंक्शन वाला सी स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी प्लस 4, ठीक है। तो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू सी, तो क्या बनेगा 2c माइनस 5, ठीक है। 2c माइनस 5 आ गई, तो इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0, एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू 0। तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आई, c की वैल्यू आएगी 5/2, ठीक है। एक फंक्शन गिवन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1। मॉड के अंदर एक्स है, -1 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, ठीक है। यानी -1 से भी इंक्रीज होता जा रहा है और +1 से भी इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। मॉड एक्स की बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो देखें इसमें -1 टर्म है, तो यानी इसका टर्म जो है इंटरवल -1 से लेके 1 तक डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो देखिए फंक्शन तो कंटिन्यूस है, यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ से लेके -1 से लेके +1 तक कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। पर फंक्शन जो है इसकी जो दूसरी जो है, पहली जो इसकी जो है रोल्स थ्योरम की जो खुसूसियात है, ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है जहां पे x की वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि वहां पे फंक्शन पे एक कॉर्नर पॉइंट आ रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज हैं कि जिस जहां पे कॉर्नर पॉइंट्स हो वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएशन नहीं होती, फंक्शन की डिफरेंशिएशन। सो सिमिलरली एट x इक्वल टू 0 ये फंक्शन डिफरेंशिएटेड नहीं है, तो इसको हम मजीद जो है यहाँ पे जो है रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। So we have the function f of x equal to modulus of x minus 1. That is, we have to check whether the Rolle's theorem applies to this function. So what are we going to do? First of all, we are going to check the first properties of Rolle's theorem, according to which the function should be continuous and it is differentiable on every point of the given interval. So we have the interval +1 and -1. As this interval is continuous on from 1 to -1 or -1 to 1, so it is continuous, but it is not differentiable on the corner points at x equal to 0, where x is equal to 0. So it is not, according to differentiability properties, the differentiation of any function cannot be taken at the corner points. So here a corner point exists at x equal to 0. So according to Rolle's theorem, the differentiability requirement is critical in the Rolle's theorem, as here in this case x intercepts equal to x equal to 1 and x equal to -1, the function is continuous on the closed interval 1 -1. But but on this open interval the function is not continuous. So this is the Rolle's theorem. Hence, in the given expression, this function cannot be applied. एक थ्योरम है
Rolle's theorem. So the given problem is saying that does Rolle's theorem apply to the function y equal to sin x? So this is the graph of the sin x. It starts from 0, maximum at pi by 2, and decreases at pi. Again it is negatively increasing and maximum at 3 pi by 2 at the negative half of the cycle, and it is ending at the 2 pi. So according to trigonometric function sin x, it is continuous on every point on any interval, and it is differentiable on any point of the given interval. So here the interval is given from 0 to 2 pi. This is 0 to 2 pi. So we know that it is continuous and differentiable on the given interval 0 to 2 pi. So if we are inserting 0 in the sin x, sin 0 becomes 0, and if we are checking the sin 2 pi, which is always equal to 0, so the second statement is also proved. It seems that the endpoints of the given interval 0 and 2 pi becomes 0 according to the function's value. Okay, so according to third point, there exists some hypothesis of the Rolle's theorem are satisfied on the interval 0 to 2 pi such that y dash of c equal to 0, as as the hypothesis of Rolle's theorem satisfied on the given interval 0 to 2 pi, so such that the value of c, differentiation of the function with respect to c, equal to 0. So we know that the differentiation of sin x becomes cos x, and we have to find the value of we have to check the y of c equal to 0. So this statement according to stationary points. So cos c equal to cos inverse of 0, that is on. So the cos inverse of 0 becomes at the interval pi by 2. Here exists some point and 3 pi by 2. So these are the 2 points where the slope of the tangent line is an horizontal line. So in these points, the slope of the tangent line becomes horizontal point. Slope becomes 0 at the horizontal point. So once again I am going to repeat this in Urdu. हमें फंक्शन मिला गया था y इक्वल टू साइन एक्स. ठीक है, हमसे पूछा गया है क्या ये जो फंक्शन है इस पे रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो हमने अप्लाई किया है. रोल्स थ्योरम का ग्राफ आप देख रहे हैं, ये रोल्स थ्योरम का ग्राफ है. ठीक है, इसमें सबसे पहले देखें आप कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, पाई बाय 2 पे मैक्सिमम वैल्यूज की आ रही है, 2 पाई पे ये कम होता जा रहा है, फिर से कम हो गया, 0 हो गया. ठीक है, फिर 3 पाई बाय 2 पे नेगेटिवली मैक्सिमम हुआ और 2 पाई पे खत्म हुआ. ठीक है, इंटरवल इसका क्या है, 0 से लेके 2 पाई तक है. देखें पहली शर्त क्या है रोल्स थ्योरम के हिसाब से, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है. ठीक है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है. क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि साइन एक्स से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं. ठीक है, और दूसरी बात डिफरेंशिएबिलिटी, साइन एक्स तो डिफरेंशिएटेड होता है एवरी पॉइंट पे. ठीक है, हमने लास्ट टाइम भी बहुत से प्रॉब्लम्स में चेक किया है और उस पर भी हम चेक करते हैं. ठीक है, तो अच्छा, साइन के अंदर अगर हमारे पास गिवन इंटरवल है 0 to 2 पाई, इन दोनों पे ये डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है हमारे पास. ठीक है, अब देखें जो पॉइंट्स की जो एंड पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन है 0 और 2 पाई, इस पे देखें 0 साइन 0 0 होता है, 0 के बराबर होता है, और y जो है साइन 2 पाई जो है वो भी 0 के बराबर होगा. ठीक है, क्योंकि ये देखें 0 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, 2 पाई पे भी इसकी वैल्यू 0 आ रही है. ठीक है, अच्छा तीसरी चीज, अब रोल्स थ्योरम की हाइपोथेसिस तो इसका सेटिस्फाई हो रही है इंटरवल 0 to 2 पाई पे. ठीक है, तो अब हमने जो है उसकी जो है सी पॉइंट्स किस तरह फाइंड करते हैं, y डैश ऑफ c इक्वल टू 0. तो c की डिफरेंशिएशन क्या की हमने, cos x आई, sin x की डिफरेंशिएशन cos x आएगी. अच्छा, जो x की जगह पे हम जो है c वैल्यू को देखना चाहें, अच्छा c को हम अगर c वैल्यू देखना चाहें तो cos x जो है cos इनवर्स ऑफ 0, ये किसके बराबर होगा, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे. यानी ये जो पॉइंट्स हैं इस पे आपको
हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन नजर आएगी, ठीक है, इन पॉइंट्स पे। तो ये थी हमारे पास रोल्स थ्योरम के हवाले से एक एग्जांपल। मजीद एग्जांपल करके देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है x² - 8x + 15 और इंटरवल मिला हुआ है 3, 5, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है और ये हमारे पास इंटरवल है। तो सबसे पहले देखें फंक्शन पे जो है रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारी पहली पॉइंट क्या है, फंक्शन जो है वो हमारे पास कंटिन्यूअस होना चाहिए, जो गिवन इंटरवल है और जो है डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो जो हमारे पास यहाँ पे जो इंटरवल है वो है 3 to 5। 3 to 5 जो इंटरवल है, इस पे देखें फंक्शन जो है दैट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन एवरीवेयर। पॉलिनोमियल जो होते हैं वो हर जगह पे कंटिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं हर पॉइंट पे इंटरवल की, ठीक है। तो हमारे पास 3 और 5 है, इस पे कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो पहली पॉइंट हमारी सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी पॉइंट ये होती है कि रोल्स थ्योरम की कि अगर हम आपके पास जो एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल है उसकी वैल्यू अगर देखना चाहें दैट शुड बी इक्वल टू 0। एक हमारे पास f(3) है, 3 है और दूसरी 5 है। फंक्शन के अंदर 3 और 5 अगर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू बन जाती है दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हाइपोथेसिस ऑफ द रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड, देन देयर एग्जिस्ट। अब देखें दोनों हाइपोथेसिस जो है वो सेटिस्फाई कर रही हैं, कंटिन्यूअस भी हो, डिफरेंशिएबल भी हो और एंड पॉइंट्स जो है वो 0 के बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो हमें हाइपोथेसिस सेट कर रही हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि उसके अंदर फंक्शन के अंदर एक ऐसी पॉइंट होगी जहां पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन होगी, ठीक है। तो वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन किस तरह से फाइंड करते हैं, सबसे पहले फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करते हैं सी में, यानी x की वैल्यू थी जहां पे वहां c रखेंगे, जहां पे x था वहां पे c रखेंगे। तो फंक्शन हमारे पास किस तरह बनेगा, c² - 8c + 15, ठीक है। तो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन होगी 2c - 8, ठीक है। c की वैल्यू, अच्छा स्टेशनरी पॉइंट्स की जो है हमारे पास जो है यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे, f'(c) = 0, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट को देखेंगे या क्रिटिकल पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। सो 2c - 8 = 0, ठीक है। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4 आएगी। इसका मतलब क्या है कि जो 4 एट द पॉइंट 4 टेंजेंट लाइन इज हॉरिजॉन्टल। हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन है 4 पे, ठीक है, वो एट द पॉइंट 4 हमारे पास जो है इस फंक्शन में एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन है, ठीक है। Now we are going to repeat this in English. So we have the given function as x² - 8x + 15. We have to check whether it is the Rolle's theorem satisfying or not. If satisfying, then we have to find the c at all points. So we have directly substituted the interval, and we have the given interval is 3 to 5. So as the given expression is comprises of some polynomials. So we know that the polynomials are continuous on everywhere and it is differentiable on everywhere. So here the interval is given 3 to 5. So it means it is continuous on 3 to 5 and differentiable on this interval. So simply what we have done, we have simply after first satisfaction, we are moving towards the end point. So 3 to 5, we have substituted the values of 3 and 5, which are the end points of the interval. And we have checked whether they are becomes 0 at both sides. So it is satisfied that both sides are become 0. So in the third case, we have to check the hypothesis of the Rolle's theorem satisfied. Then if the now here both hypotheses are the satisfied. So now we are going to find the at least one c in the interval, so that there must be an horizontal line, tangent line. Okay. So what we have done, we have transformed the function where the value of x is equal to c. So the function becomes c² - 8c + 15. The differentiation of this may be taken as 2c - 8. And we know that the critical conditions are stationary point conditions we have applied. So 2c - 8 equal to 0. So the value of c becomes 4.
we know that it means the value of c becomes 4. It means that at the point 4 there is a horizontal tangent line. So this is whole for it. Now further we are going to analyze some other problems related to the topic. Okay, so now we are moving towards the next problem. So we have the given function f of x equal to 1 upon 2x minus square root of x, and we have the given interval 0 to 4. So directly what we have think that this is the polynomial, so it is continuous on everywhere and differentiable on all points of the given interval 0 to 4. So simply what we have done, we have substituted the value of endpoints of the interval 0 and 4. So we have checking 1 upon 2 multiplied by 0 becomes 0, and minus the square root of 0 becomes 0. So f of 0 is equal to 0, and f of 4 becomes 1 upon 2 multiplied by 4 becomes 2, and minus square root of 2, the square root of after the square root of 4, it becomes the 2. So plus 2 minus 2 cancels each other and it becomes 0. So we know that the C belongs to hence the hypothesis of the Rolle's theorem are satisfied in the up to this here f of 0 and f of 4. So we know that such that there must be a point f dash of c which is equal to 0. So we have to find out that point. What we have done, simply we have taken the differentiation of the given function, which becomes 1 upon 2 minus 1 upon 2 square root of x, and the replacing x by c, so it becomes 1 upon 2 minus 1 upon 2 square root of c. So checking this condition f dash of c to this, it becomes this, and we have simply simplified this becomes, and it becomes plus minus 1. So these are the 2 points where there must be some horizontal tangent line at this point. So again going to repeat this in Urdu. देखिए एक फंक्शन मिला था 1 upon 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, इंटरवल है हमारे पास 0 to 4. ठीक है, तो हमारे पास f of 0, इसके अब देखें ये एक तो पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी होगा हर पॉइंट पे. ठीक है, फंक्शन है हमारे पास, इंटरवल है हमारे पास 0 to 4. तो इसमें भी ये दोनों ये जो पॉइंट्स, ये फंक्शन है, इन दोनों पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है. ठीक है, अब दूसरी चीज देखें, इसके अंदर अगर 0 एंड पॉइंट पे अगर चेक करना चाहें क्या 0 बन रहा है फंक्शन. ठीक है, तो एंड पॉइंट पे हमने सिंपली 0 वैल्यू इंसर्ट की है, तो 0 बिकम्स 0, 1 upon 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 का, और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ 0 बिकम्स 0 होगा. ठीक है, अच्छा ये दोनों जो है हमारे पास हाइपोथेसिस थी जो रोल्स थ्योरम की, वो सेटिस्फाई कर रही है. तो अब इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी पॉइंट होगी जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जरूर. ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन जरूर होगी. तो हमने उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए क्या किया है, जो गिवन फंक्शन था उसकी डिफरेंशिएशन की है. डिफरेंशिएशन करने के बाद उसके अंदर जो है सी पॉइंट फाइंड करने की कोशिश की है. तो एफ ऑफ डैश ऑफ सी, ये 0 इक्वल टू 0 स्टेशनरी कंडीशन अप्लाई की है. उसके बाद इसको सीधा सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आई प्लस माइनस 1, यानी इसके पास दो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक प्लस साइड 1 पे होगी और दूसरी माइनस साइन 1 पे होगी. तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू दैट इज वहां पे टेंजेंट लाइन जरूर बनती होगी इस इन पॉइंट्स पे. ठीक है, तो अब मजीद देखते हैं हमारे पास जो आगे नेक्स्ट टॉपिक है उसको मजीद स्टडी करते हैं. हमारे पास है मीन वैल्यू थ्योरम. तो मीन वैल्यू थ्योरम जो है उसको डेफिनेशन के साथ हम पढ़ते हैं. चलें जी, मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ रहे हैं. ठीक है, अभी हम मीन वैल्यू थ्योरम की डेफिनेशन तो वैसे हम देखते हैं. ठीक है, अब इसकी थोड़ी एनालिसिस के हवाले से मैं आपको बताना चाहूंगा. देखिए, मीन वैल्यू, मीन क्या है, सेंटर वैल्यू क्या है, सेंटर वैल्यू थ्योरम. सेंटर वैल्यू थ्योरम किस तरह हम ऑब्टेन करते हैं उसके बारे में है. कैलकुलस की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें इसकी, हमारे पास जो कोई भी फंक्शन है कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पे ए बी पे, और जो है डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे. अच्छा,
इसके मतलब ये है कि वहां पे एक ऐसी पॉइंट जरूर होगी, कम से कम एक ऐसी पॉइंट जरूर होगी दैट इज नॉन एज सी, जहां पे जिसकी वैल्यू आप किस तरह से निकाल सकते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, एफ डैश ऑफ सी है, मीन वैल्यू थ्योरम है। तो ये देखें ग्राफिकली, इसको अगर आप किस तरह देखना चाहें, दो स्लोप्स हैं। ठीक है, एक जो जा रहा है इस पॉइंट पे, ये जो है एक एफ ऑफ सी है, यानी दो स्लोप्स हैं। ठीक है, उन दोनों स्लोप्स की वैल्यू कुछ ये वाली है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है और ये खत्म कहाँ पे हो रही है, बी पे खत्म हो रही है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन आ रही है। ठीक है, तो अब जो बीच में ये जो सी वाली पॉइंट है, इसको आप किस तरह से फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला बेसिकली ये है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। ठीक है, अच्छा, और जो इसको जो डिनोट किस तरह करेंगे, इसको एफ डैश ऑफ सी को, ये बेसिकली जो है आपका है स्लोप ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट द एफ डैश ऑफ सी, यानी जो पॉइंट है आपके पास, इसको मजीद आप यहाँ इस वाली पॉइंट को आप जो है एफ डैश ऑफ सी यानी क्रिटिकल पॉइंट, जिस तरह हम लास्ट टाइम डील कर रहे थे, सेम स्ट्रेटजी, सेम यानी आपको जो है अप्लाई करना होगा इस पे, वही चीज है। बस बात यह है मीन वैल्यू थ्योरम में आप मीन वैल्यू किस तरह निकालते हैं, बेसिकली वो बता रहा है आपको। ठीक है, सो वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस इन इंग्लिश। सो वी हैव अ continuous function that is known as f, that is continuous on the closed interval ab and differentiable on the open interval ab. Then in these interval there is at least one point that is known as c, which is continuous, which is point is the value on which the line, on which the curve have the horizontal tangent line. So the value of the horizontal tangent line can be obtained through this formula, f of b minus f of a divided by b minus a. So we know that the slope of a secant line joining two points f a and f of a, b and f of b. So simply this is the same formula, mean value theorem gives a formula f of b minus f of a upon b minus a. So this is f dash of c is what? It is the basically the slope of the horizontal line. So the given theorem can be further understood through some examples. So now we are going to further moving towards our example so that we can understand what are they are approaching towards that point. Okay, so now we are moving further towards the example. It is asking that show that the function f of x equal to 1 upon 4x cube plus 1 satisfy the hypothesis of the mean value theorem over the interval 0 to 2 and find the values of all c in the 0 to 2 at which the tangent line to the graph of f is parallel to the secant line 0 of f, secant line joining the points 0 f of 0 and 0 f of and 2 f of 2. So here the function is giving as f of x equal to 1 upon 4x cube. So we have to check that is it satisfying the properties of all properties of the mean value theorem. So as in we have, according to the mean value theorem, we have seen a graph in which two secant lines are parallel to each other and a curve is forming, and there exists a point, there exists a curve on the horizontal line on the which is parallel to the both points. So similarly we have to check out these statements with respect to the mean value theorem. So here the function is f of x equal to 1 upon 4x cube plus 1. We can see that this is a polynomial function. So it is proved that this function is continuous and continuous on everywhere and differentiable on each point of the given interval 0 to 2. So simply what we have done, we have taken the values of f of 0. It has become, when we are inserting 0 in this function, it gives 1, and when we are giving 2 in this function, it gives 3.
So this is the overall the endpoints of the f of 2 and f of 0 values. So in the third step, what we have done simply differentiating the given function. The differentiation of 1 upon 4x cube becomes 3 upon 4 x square. 3 upon 4 c square. So 3 upon 4 c square, we have directly substituted the value of 3 minus 1, 2 minus 0 equal to 2 upon 1. So the value of c becomes 3 plus minus 2 upon 3. So as we have the interval 0 to 2, so neglecting the minus 2 upon 3 outside of the interval. So simply once again we are going to repeat this in Urdu. हमारे पास एक फंक्शन गिवन है 1 upon 4x cube plus 1, ठीक है, और इंटरवल है 0 to 2. इस पे ये ग्राफ बन रहा है, इस पे ग्राफ बन रहा है, इस पे कहा जा रहा है कि ये जो फंक्शन है हमारे पास इंटरवल है 0 to 2, ठीक है. सो यहाँ पे देखना है कि हमें जो टेंजेंट लाइन है ये ग्राफ फंक्शन के ग्राफ के ऊपर पैरेलल है, जो कि फंक्शन का ग्राफ जो पॉइंट्स बना रहा है 0 to f of 0 एंड 2 to f of 2, ठीक है. तो सिंपली हमने क्या किया है, सबसे पहले फंक्शन लिखा, जो हमारे पास फंक्शन था 1 upon 4x क्यूब प्लस 1, क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है. पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है हर पॉइंट पे और डिफरेंशिएबल भी होता है हर पॉइंट पे, ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट क्या है 0 to 2, छोटा इंटरवल है 0 से लेकर 2 तक, तो इसमें भी ये कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा. तो मीन वैल्यू थ्योरम की जो हाइपोथेसिस थी वो तो सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है. तो हमने डायरेक्टली क्या किया है, हमने जो है सबसे पहले किया है ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है, ठीक है. फार्मूला कौन सा है, ये मीन वैल्यू थ्योरम है. इसको कह दें आप एफ ऑफ बी, इसको कह दें आप एफ ऑफ ए. अब यहाँ पे ए है ये, बी है ये, ठीक है. तो ए पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा. तो एफ ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू 1 बन रही है. एफ ऑफ 2 पे इसकी वैल्यू क्या बन रही है, इसके ऊपर 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है. 3 वैल्यू बन रही है. अच्छा, ये जो दूसरी आप चीज देख रहे हैं ये बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ सी फाइंड करने की कोशिश की है ताकि हम सी की वैल्यू निकाल पाए, ठीक है. तो ये इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सी आएगी 3 upon 4 c स्क्वायर, ठीक है. अच्छा, 3 upon 4 c स्क्वायर को डायरेक्टली हमने रखा तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बना 3 upon 4 c स्क्वायर 3 minus 1, ये 2 upon 2 1 बना, यानी 3 स्क्वायर. इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, थ्री अपॉन 4 c स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है. तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने के बाद जो है आपके पास जो है ये जो वैल्यू आएगी c की प्लस माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो आपके पास जो c की वैल्यू आई, इसको अगर मजीद सॉल्व करना चाहें किस तरह कर सकते हैं हम. सी की वैल्यू आई प्लस माइनस 2 अपॉन 3. अब प्लस माइनस 2 अपॉन 3 और इंटरवल कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेकर 2 तक स्टार्ट हो रहा है. माइनस में तो नहीं आ रहा, तो माइनस वाली साइन को हम नेगेटिव जो है उसको नेग्लेक्ट करेंगे. बचा क्या, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, वो पॉइंट है जहां पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन जो है बन रही है कर्व पे, ठीक है. इसको ये इसका सोल्यूशन है. टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल टू द सेकेंड लाइन, यानी ये वाली वो वाली पॉइंट है जहां पे जो टेंजेंट लाइन है हॉरिजॉन्टल टू द सेकेंड लाइन है.
अच्छा, ये वो वाली पॉइंट जहाँ पे हमारे पास टेंजेंट लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल बन रही है सेकंड लाइन पे, ठीक है। इसके हवाले से एक दूसरा प्रॉब्लम करके देखते हैं, तो इंशाल्लाह हमारे पास जो है ताकि इसको मजीद जो है समझने के लिए कोशिश करें, एक दूसरा प्रॉब्लम इस तरह करके देखते हैं, ठीक है। एक आखिरी प्रॉब्लम है, ठीक है, आज के लेक्चर का। सो इसको हम करके देखते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है यहाँ पे x² - x हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, और इंटरवल है -3 to 5। इसको हमने चेक करना है और c की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो सबसे पहले इसको हमने किस तरह चेक किया हुआ है, पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल है इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यूअस है हर पॉइंट पे, यानी -3 to 5 जो है हमारे पास जो पॉइंट है, इंटरवल है, इस पे कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पे, और डिफरेंशिएबल भी है सेम इंटरवल पे, ठीक है। कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल है इसी इंटरवल पे। तो मीन वैल्यू थ्योरम की हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक एटलीस्ट एक कम से कम एक सी होगा जो कि इस इंटरवल में बिलोंग करता है। वो सी किस तरह फाइंड करेंगे, सी का बेसिक फार्मूला क्या है, एफ डैश ऑफ सी किस तरह फाइंड करेंगे, इस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। सी की वैल्यू यानी शॉर्टकट में इस तरह से फाइंड करेंगे। अच्छा, एफ ऑफ 5 क्या है हमारे पास, इस फार्मूला में इसमें इसके अंदर 5 इंसर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा। इसके अंदर -3 पुट करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, ठीक है। और इसकी अगर डिफरेंशिएशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू सी तो हमारे पास 2c - 1 आ जाएगा। इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 2x - 1, और x को रिप्लेस करें c से तो 2c - 1 बन गई, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपली इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी 2c f डैश की, इसकी वैल्यू यहाँ रखी f डैश ऑफ c की 2c - 1, इसकी वैल्यू हर किसी की वैल्यू रखी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, 2c - 1 आ गया, ठीक है। या ये 1 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो ये 1 वो वाली पॉइंट है जहां पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन है हमारे पास, ठीक है। So once again I'm going to repeat this in Urdu, repeat this in English. So we have the function x² - x and the interval -3 to 5. So the given function x² - x is a polynomial function. So we have to further it is understood that this function is continuous on the given interval and is differentiable on the open interval. So it is continuous on the closed interval of -3 to 5 and differentiable on the open interval of the 3 to 5. So as it indicates that it satisfies the properties of the hypothesis of the mean value theorem. So it means that there exists at least one c which belongs to the -3 to 5. Okay, so simply what we have done, we have applied the mean value theorem formula and we have taken the all values of the given statements. So we have substituted the values in the given formula and we have simplified it and we have get c equal to 1. So it means that c is a value where the horizontal tangent line occurs. So that is all for today. So inshallah I will meet you in next lecture with the new topics. So we have completed the differentiation section up till now. So now we are moving towards the antiderivatives in our next topic. So hope for the best, and if you have any queries regarding the given as we have studied in, you can ask me in live class. So inshallah we will further resolve the all queries and clarify the all concepts. So okay, Allah Hafiz.